हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं मोहम्मद आज़म इस्लामिया हाई स्कूल रोहिड़ा विखे बतौर हिस्ट्री ਲੈਕਚਰਰ अपनी सेवावां निभा रहा हाँ। पंजाब वक्फ बोर्ड जो कि किसी भी पहचान का मुहताज नहीं है। असी सारे जानते हाँ कि पंजाब वक्फ बोर्ड पंजाब सरकार दे होम अफेयर एंड जस्टिस दे अधीन एक खुद मुख्तियार अदारे वजों अपनियां सेवावां निभा रहा है। असी ये भी भली भांत जानते हाँ कि पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन अलग अलग समाजिक गतिविधियां होंदियां रहिंदियां ने। उन्हां गतिविधियां के जरिए लोगों का वध तो वध भला हुंदा है। पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन हज़रत हलीमा हॉस्पिटल, इस तो इलावा 15 विधिक अदारे जिस दे विच एक कॉलेज ते 14 स्कूल भी आ रहे हैं। पिछले कुछ समय दे विच पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा सिक्ख्या के खेत्र के विच काफ़ी क्रांतिकारी तब्दीलियां लिआंदियां जा रही ने। जेकर असीं उपरोक्त विधिक अदारियां की गल करिए तो तुसीं इन्हां नूं विजिट करके इन्हां तब्दीलियां बारे जानू हो सकते हो। इसे कड़ी के तहत एक बहुत ही सोहना अते निवेकला इनीशिएटिव मानयोग CEO पंजाब वक्फ बोर्ड जनाब लतीफ़ अहमद हिंद जी वालों लिया गया है। इस विच सारे ही स्कूलों के प्रिंसीपल्स अते इंचार्ज साहिबान नूं विद्या के खेत्र के विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्कूलों की विजिट करवाई गई। इस विजिट का जो मकसद सी एक दूसरे के प्रोसैस नूं समझना, शेयरिंग करनी या फिर होर सुधार लेके आने, ये सारा सी। विजिट दौरान असी वख-वख स्कूलों के अध्यापकों नूं, बच्चों नूं अते उन्हां दी जो हाई अथॉरिटीज़ ने सब नूं असी मिले। असी उन्हां दे रूबरू होए, बाकायदा तौर पर असी क्लासरूम प्रोसैस बारे भी जानिया। तो आओ हुण आपां सारे वख-वख स्कूलों की इस विजिट नूं देखदे हां, इस दे रूबरू हुंदे हां। Welcome. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Please sit down. So we were discussing about the formula that we have applied here total. Okay. So next one we want to find out the percentage of these subjects marks. Total we are having. How to find out the percentage? Tell me. In the mathematics, how we find out the percentage? Then obtained marks divided by total marks and multiplied by 100. So we will use the formula or function here. Yes, Okay. ma'am. So firstly we will एक्चुअल रेशियो नहीं ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸਰਟਨ ਦੈਟ far more outsider act with us than all the members of our own family put together. बट कहना बहुत सारे लोग साडे नाल बैठ के ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. I was one of many children. कहना भी बहुत सारे बच्चों के बीच एक मैं सीगा, a short boy with rather looks, born to tall and handsome parents.
ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਅ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ, ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਸੈਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ भी बच्चा और कुछ भी बताओ। शायद वो फील करो बेटा, कोई बताओ, कोई हाँ। So we have read about APJ Abdul Kalam. He was born in a middle class Tamil family in Rameshwaram, and his father Jainul Abdin was a strict parent who did not have good studies, but he gave good studies to his children. And his mother was also a very helping hand woman who helped everyone that come in her house and gave food also. Just started studying a new chapter for our syllabus of term 2. That poem we have started Jang da Hal, that is written by Shah Muhammad, and he was born in Amritsar district, that was in a village of Badara, and he presented our old culture like that ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Informal letters are personal and they are informal. We write them personally to anyone. For example, our family, friends, and our parents, somebody that we know. What kind of things we like to our parents or friends? That What is the difference between official letter and informal letter? formal letters we write to that are not personal, we write to everyone. But informal letters are personal and we write only to our family, friends. Can you explain what are the official letters? A letter written by your teacher to your principal will be official letter. A letter written by your principal to STM will be a personal letter. Sorry, official letter. How are you, beta? Okay, stand up all. Hands should be back. Which class do you study? What is the name of your school? Okay, very nice. Good morning to everyone. I am Captain Rohit Dwivedi, Principal of Guru Tegh Bahadur Public School, बर्डवाल धुरी। आज पंजाब वक्फ बोर्ड के जो हमारे सदस्य हैं और उनके अंदर जो विद्यालय हैं बहुत सारे, मलेरकोटला में ख़ास तौर से उसके अध्यापकगण श्री लतीफ़ साहब के संरक्षण में आए आज यहाँ पे और हमारे विद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ समय बिताया, स्कूल की अच्छी प्रैक्टिसेस को देखा और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें पूछी भी और कुछ हमने भी उनके साथ शेयर किया बहुत सारी बातों को। तो मुझे बहुत खुशी है ये पहली बात कि इस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन किए जा रहे हैं
जिससे कि बच्चों को शिक्षा के मामले में इतना अच्छा काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड द्वारा, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये मानता हूँ, जैसे कि हमारे पहले की बातचीत में भी यही निकल के आया, कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मूलभूत रूप से बेसिक तरीके से मनुष्य को विकसित करने में मदद करती है। एंड आई फील दैट any society which is educated properly, it is a rational society, it is a society which is happier, well adjusted and it progresses well. तो इस मामले में अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि एजुकेशन कैसे दी जाए जिससे ज़्यादातर बच्चों को एक समग्र शिक्षा उनको मिले, और उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम एकेडमिक फील्ड की बात नहीं करते हैं, हम उनके चारित्रिक विकास, उनके एप्टीट्यूड उनके जो होते हैं, उनके काम करने की क्षमता, उनकी जो सोशल स्किल्स होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इन सब के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो अभी शिक्षा के बारे में लोग यही ज़्यादातर सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करा के कुछ नौकरी कराएंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। वो तो ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन साथ साथ में एक इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनना, एक वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी बनना, उसमें स्कूल का बहुत बड़ा महत्व है, अध्यापकों का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यापक अपने आप में एक आदर्श ऐसा प्रस्तुत करें, एक इस तरह का आइडियल प्रस्तुत करें कि जिससे कि बच्चे उनसे एमुलेट करें, और उसके लिए उन्हें खुद एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी होना आवश्यक है। उन्हें एक हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उनकी एक्लेक्टिक पर्सनालिटी खुद की होनी चाहिए, जिससे कि उनके इंटरेस्ट सिर्फ एकेडमिक से न हो के बहुत सी और भी क्षेत्रों में हो। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, आप किस जगह के रहने वाले हैं, आपकी ज्योग्राफी क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके यहाँ वनस्पतियाँ क्या पाई जाती हैं, आपके यहाँ फसलें क्या होती हैं, आपके यहाँ समस्याएँ क्या हैं लोकल तौर पर, इन सब से जब आप वाकिफ़ रहते हैं, इससे जुड़ते हैं, तो आप वहाँ के सच्चे नागरिक बन पाते हैं, और तब आपकी पर्सनालिटी में एक अलग निखार आता है, और वो आवश्यक है। तो मैं बच्चों से और अध्यापकों से यही गुजारिश करूँगा कि पढ़ाई लिखाई को सिर्फ एक किताब की दृष्टि से न देख के एक लाइफ की दृष्टि से देखें उसको, और उसको समावेश करें अपने लाइफ में, और इस प्रकार से वो देश के एक अच्छे नागरिक बने, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बने, और फिर एक समरसता जो समाज में आती वो आएगी। क्योंकि जब हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे और खुश रहेंगे दिमाग से, तो हमें फिर जो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में आती हैं, चाहे कम्युनल प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे ये ड्रग्स की समस्या है, चाहे ये बेरोज़गारी की समस्या है, इन सबसे हम दूर रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारे मिस्टर पवन कुमार जी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और इंचार्ज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट, ये अभी बच्चों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करता है। इन सब एक्टिविटीज़ की ब्रीफिंग के लिए ये कुछ सिलेक्टेड बच्चे इन्होंने बुलाए हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन हर साल हर वर्ष हम EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बहुत सी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड ईच एंड एवरी ईयर। इन एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम स्कूल लेवल पे लगातार उनको कंडक्ट करते रहते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम क्लस्टर लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा KVS EBSB के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता पर्व, तो उसके अंतर्गत हम ये एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें डांस कंपटीशन, डांस में ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, देन इट इज़ सोलो सॉन्ग, मोनो एक्टिंग, तो इस तरह की बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। उसके लिए बच्चों को रिहर्सल के लिए बुलाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हमारी डिफरेंट स्टेट्स को पेयर किया जाता है, सो दैट कि कल्चर डिफरेंट कल्चर बच्चे उसकी नॉलेज ले पाए। इसमें जैसे लास्ट टाइम था हमें आंध्र प्रदेश के साथ पेयर किया गया है, अब कल ही हमारा एक हुआ प्रोग्राम, उसके अंदर भी वर्चुअल मोड पे हम उनके साथ कनेक्ट किया था। उन्होंने हमें उनके कल्चर हेरिटेज आंध्र प्रदेश, यस सर, उनके बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट किया था। हमने उन्हें पंजाब के कल्चर, स्टेट हेरिटेज, नेशनल हीरोज़ के बारे में, फिर लास्ट में अपनी सर उन्होंने मतलब वैसे तो वीडियो क्वालिटी के थ्रू था, उन्होंने हमें PDF थ्रू दिखाया था, कुछ पिक्चर्स थी, डांस फॉर्म्स दिखाई थी अपनी, कथक टाइप वो सारा दिखा रहे थे, और लास्ट में उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया था कि अपना नाम कैसे बोलते हैं, वो सब लैंग्वेज मतलब अगर हम किसी से मीट करते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन इतना हमें आना चाहिए कि हम उनके साथ थोड़ा मोटा बात कर पाएँ। सबसे बड़ा वैसे तो मेरे को प्रोग्राम का सबसे बड़ा यही लगा कि हम वहाँ नहीं जा पाए, बट स्टिल हमें उनके कल्चर के बारे में नॉलेज है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल हमारी कॉन्फ्रेंस, माय नेम इज़ भूमि फ्रॉम क्लास 12B। आपने पंजाब के बारे में बेस्ट चीज़ें क्या उनसे शेयर की? सर हमने अपने फार्मिंग के बारे में बताया कि हमारी जो स्टेट है वो एग्रो बेस्ड है, मोस्टली ऑफ 70% लोग एग्रो बेस्ड ही हैं। उसके बाद हमने भांगड़ा गिद्धा के बारे में बताया, गेम्स के बारे में बताया कि कबड्डी, हॉकी, मतलब कुछ मोस्ट फेमस प्लेयर्स के नेम भी बताए। नंबर 1 चीज़ क्या है पंजाब की जो जिसको हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं? अमृतसर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स काफ़ी बच्चों ने बोले थे, किसी ने टूरिज्म पर, हेरिटेज सिटीज़। पंजाब में नंबर 1 की बात तो अमृतसर ही है। यस सर, सभी विजिट करने यही इसलिए आते हैं। यस सर, हमने फेस्टिवल्स के बारे में बताया। यस सर, मोरओवर हमने उनके लंगर कॉन्सेप्ट भी बताया कि वो हमने बताया कि नीचे बैठा के खिलाते हैं तो इक्वालिटी शो होती है, ये सभी हमने बताया। थैंक यू सर। सर मोस्ट डिफरेंस यही था कि KV में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना डिफरेंट जगह पे जाने की, वो वहाँ पे नहीं था। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें मेनली वो जोन लेवल पंजाब में ही हो पाते हैं, लेकिन लाइक आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, तो मैं SGFI और नेशनल में भोपाल उस जगह पे गए थे। बहुत मतलब वहाँ के नए बच्चों से मीट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब हम दूसरे के साथ कैसे बात करें। और मोरओवर जो हमारा ये नए एक्टिव, ज़्यादातर स्कूल इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्टडी, लेकिन इसमें ये भी फोकस किया जाता है कि आप स्टडी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इक्वल, फॉर एग्जांपल अब 12th में है, ज़्यादातर स्कूल में बच्चों को अलाउ भी नहीं किया जाता कि आप दूसरी चीज़ में पार्टिसिपेट करो, बट विद स्टडी हम एथलेटिक्स में गए थे, अब ये डांस सॉन्ग सब में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका ये भी नहीं कि हमारा स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है, स्टडी में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। विद दीज हम मतलब बैलेंस कर पाते हैं कि एक साथ मल्टीटास्किंग कैसे कर पाएँ। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय स्लाइट लौंगोवाल से केजीत सिंह फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर। सारे ही जितने हमारे ADC साहब, उनकी टीम और स्पेशली प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो हमारे स्कूल को विजिट करने के लिए आए हैं। मैं आपको सर साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय स्लाइट लौंगोवाल है, इसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं डिफरेंट गेम्स में, जैसे कि एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में, चेस में, और साथ ही साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसी गेम्स में भी हमारे बच्चे रीजनल स्पोर्ट्स मीट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस साल जो हुई थी हमारी 2022-23 की रीजनल स्पोर्ट्स मीट, उसमें हमारे टोटल 36 मेडल आए हैं डिफरेंट गेम्स में, जिसमें कि हमारे 14 बच्चे जो हैं फॉर नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो कि 6 तारीख से डिफरेंट जो कैंप जोन है वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी जाएंगे। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारा जो है साथ जो बच्चा का ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसको हम फॉलो करते हैं। जो भी करिकुलम हमारा है, जैसे कि उसमें फिट इंडिया मैराथन रन हो गया,
फिट इंडिया क्विज हो गया, और साथ ही साथ खेलो इंडिया, इसके साथ हमारा स्कूल जो लिंक हुआ है, इसके साथ हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। जैसे कि अभी फिट इंडिया क्विज के ऊपर हमारा वर्क चल रहा है, उसमें हमारे स्कूल के 2 बच्चे सिलेक्ट किए हमने, वो फिट इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका कि विनिंग प्राइस जो है 3.25 करोड़ है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर दी डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। अगर वो बच्चे चाहेंगे कि हम अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे हमारा संगठन जो है स्पोर्ट्स के लिए बहुत आगा जो है काम कर रहा है। और जो है हमारा करिकुलम में रहता है, मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को फिटनेस एक्सरसाइज करवाते हैं, साथ ही साथ 2-3 आसना रेगुलर करवाते हैं बच्चों को, जिससे जो है उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और साथ ही साथ उनकी डाइट के ऊपर भी ख्याल रखा जाता है। ड्यूरिंग लंच टाइम हम चेक करते हैं प्रॉपरली कि बच्चे जो हैं न्यूट्रिशनल फूड ही खा रहे हैं, कोई ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इस सब के लिए प्रिंसिपल सर का बहुत योगदान रहता है। जब भी बच्चे खेलने जाते हैं उनको इन्होंने किट वगैरह प्रोवाइड करना, शूज़ वगैरह, चाहे कोई भी कंपटीशन का लेवल हो, उसमें सर बहुत एफर्ट्स करते हैं। My name is Harleen Kaur, librarian KV Slight Longowal, and we have a collection of 6,291 books, which contains reference, fiction, non-fiction, story, philosophy. So we have collection of almost mixed books, so both for teachers and students, and we perform various activities also, like we give books to the students, and then they search for new words and write it down. They have students maintain library notebooks also, where they write book reviews regularly and get it signed from me. And apart from that, I give current updates also, like general knowledge. And for example, nowadays cheetah was in news, so and today is World Heart Day also. So I keep on giving current information and news updates also. Ms. Jyoti Gupta, I am working as PGT Computer Science in this school, KV Slight Longowal. My job profile here is that I am teaching 11th and 12th classes in Python language. So my curriculum is that I am teaching them Python as well as database management system and computer networking concepts. And for 9th and 10th class, I am teaching artificial intelligence, just introduction of AI as a skill subject to 9th and 10th class, and introduction to Python afterwards, so that they create interest in the subject and then take this subject as the next option in 11th class, because most of the students here are not interested in computer science as a subject, because they are having Hindi as an option against computer science. So they take Hindi as a advantage कि उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. But I want more and more students to opt for Python, because Python is a new language, and today's maximum apps like BitTorrent or your YouTube or these all the Twitters and these Snapchat, ये सब Python में ही develop हो रहे हैं. So if the students are learning this language, they can have an extra career, an extra branch will be opened for them, and they can go into this branch. So I want more and more students to learn this language Python, and in 11th and 12th, so that they can take it in their BTech language and they can do better in their careers. Anything else? Thank you. मैं आदरणीय एडीसी सर की तरफ से जितने भी हमारे मेहमान आज केंद्रीय विद्यालय स्लाइट लोंगोवाल में उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की फंक्शनिंग देखने के लिए हमारे विद्यालय को सेलेक्ट किया, इसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय की ओर से आप सभी का आभारी हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरे देश में 1250 विद्यालयों के साथ केंद्र सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, इसके साथ साथ देश के अंदर जो एकता की भावना है, इंडियननेस की जो फीलिंग है, वो पैदा करने के लिए, दूसरा केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वार्ड्स की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, साथ साथ इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भारत सरकार की तरफ से बनाया एक पेस सेटिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर CBSE और दूसरी NCERT के साथ मिलकर साथ साथ सिमिलर जो बॉडीज़ हैं
उनके साथ मिलकर सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह की एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उनको सबसे पहले लागू करने के लिए ये हमारा इंस्टीट्यूशन काम करता है। और सेकेंडरी एजुकेशन में भारत सरकार के अंदर 2 संस्थाएं काम करती हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन और दूसरा नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति की अपने अलग प्रकार का एक सेटअप है जिसमें ग्रामीण बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में हमारे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और उसके बाद अगर स्थान होता है तो बाकी जो आम जनता के हमारे लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है और पूरा दिन जिसमें डे स्कॉलर पूरा होता है वो सब एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी तरह से रिज़ल्ट का कोई दबाव नहीं है, 12th का 10th का रिज़ल्ट का कोई दबाव नहीं है कि उसके कारण, जैसे हमारे बच्चों ने भी आपको बताया कि बहुत से स्कूलों में 12th को या 10th को, बोर्ड एग्ज़ाम को, सीनियर क्लासेस को बहुत सारी एक्टिविटीज़ से दूर रखा जाता है जिससे वो पढ़ाई पे फोकस करें और अच्छा रिज़ल्ट दें, और सो कॉल्ड जो अच्छा रिज़ल्ट है उसको प्रचार प्रसार करके लोग अपना अपना नाम कमाएं। वो हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का मानना है कि अगर बच्चे हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ बड़े होंगे तो वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे और जहाँ भी वो जाएंगे वो अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे और उनकी उपस्थिति से देश को कहीं ना कहीं ज़रूर फायदा होगा। तो अनुशासन से शुरू करके बच्चे की कुल मिलाकर संपूर्ण जो विकास जिसको कहा जाता है उसको फोकस करते हुए थ्रू आउट ईयर बहुत सी एक्टिविटीज़ को डिवाइस किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये माना जाता है कि एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड इज़ यूनिक। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है, जिस विशेषता को उभारना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब किस बच्चे के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से वो खुद को सामने ले आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो पुशिंग की ज़रूरत होती है, उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो अपने आप उसको उजागर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमारे टीचर्स का, हमारे पूरे संस्थान का, पूरे इस एजुकेशनल सेटअप का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चे के अंदर से जो इनर क्वालिटीज़ हैं जिसमें उसकी ग्रोथ हो सकती है, जिसमें उसकी यूनिक आइडेंटिटी बन सकती है, उसकी तरफ उसको ले जाया जाए, उससे उसको रूबरू कराया जाए, जिससे वो और बेहतर इंसान बन सके, वो भी अपने आप में समाज के अंदर अपने करियर में एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो सके। हाँ जी, बहुत सत्कारयोग अज के मुख मेहमान सीओ साहब ते नाल उन्होंने आए हुए साथी अध्यापक साहबान ते स्कूल के मेरे अपने स्टाफ मैंबरस सारिਆਂ ਨੂੰ सत्कार सहित सत श्री अकाल जी। मेरा ख्याल है भी कल एक लड़की ने कोई गलबात करी सी भी जे दृढ़ता होए ते पत्थर भी चकना सौखा ते जे हिम्मत ना होए ते पत्ता भी चकना औखा। भी असी मतलब कि इत्थे 1998 तो एज ए लैक्चरर काम करन करके सानू इस स्कूल दियां संस्था दियां लोड़ां ते परिस्थितियां बारे सब कुछ जानकारी सी, पर मजबूरी ये सी भी इस चेयर ते नहीं सी हैगे, असी कर नहीं सी कुछ सकते। तो जदों असी 2010 विच प्रमोट होया कि मैं उस समय के DGSC श्री कृष्ण कुमार जी, मैं उन्होंने नाम जरूर लेना हुन्ना, साडी एक बारी ट्रेनिंग सीगी प्रिंसीपल दी उत्थे, तो उन्होंने स्टेज तो खड़ के एक शब्द एक लाइन बोली सी भी अगर अध्यापक मन में धार लवे कि कुछ करना है, कहते मैं दस नहीं सकता भी वो की कुछ कर सकता है। और उन्होंने की गल बिल्कुल 100% सही है। जदों इत्थे शुरुआत हुई है 2010 विच तां जिथे आपां बैठे हैं जी, ये जिहड़ा कंपलैक्स है सामने बच्चे की फोटो लगी हुई है, इस ही पिंड दे वो निवासी ने डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, उन्होंने इकलौता बेटा सी। एक्सीडेंट च उहदी डैथ होने करके तो उन्होंने भरा जिहड़ा सी मेरे नाल इत्थे एज ए फिक्स लैक्चरर सी, उन्होंने इच्छा जाहिर की भी असीं इन्हां दे बेटे की याद में कुछ बनाना चाहुंदे हां गुरुद्वारा साहब। पर वो जिहड़े उन्होंने ब्रदर सीगे सुखदेव सिंह जी लैक्चरर फिक्स, उन्होंने थोड़ा जिहा रस्ता बदल के कि भी स्कूल च बना दो।
ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਫਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਦਈਏ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ PT ਮਾਸਟਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਡਰਦੇ ਨਟਾਏ ਵੀ 2 ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਦੌੜ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀਆ ਆੜਤਲੀਆ ਪਾਤਣਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ 'ਚੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਕਮਰੇ ਢਾਏ ਸੀਗੇ, 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਹੋਰ ਢਹਿ ਗਏ ਜੀ। 4-6 ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਂਡਾ, ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਵੀ 4 ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈंने ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਖਲੀਲ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ETOC ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੇਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 90% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹਲੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਰੁਕਣਗੇ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਕੈਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨੇਮ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ CEO ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 3 4 ਚਾਰਜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਨੇ। उन्होंने भी सानू सर ये भी दिखाएंगे आपको, सर हमारी तो टीम वेट कर रही है, वो कर देगा। मतलब समझ नहीं सी आ रहा भी तुहाडे कोल कितना पहुँचांगे टाइम ते। चलो उस तो बाद असीं थोड़ी ओवर स्पीडिंग की, तुहाडे कोल आए। मैं 3 अलग-अलग संस्थावां, एक प्राइवेट, एक भारत सरकार दी ते एक पंजाब सरकार दी देखी है तो लगता भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं। असीं ना तो सरकारी चाहुंदा है वक्फ बोर्ड, ना ही प्राइवेट चाहुंदा है, मतलब सैमी सरकारी अदारा है। पिछले वरियां दे विच काफ़ी पछड़िया होया रहा है एजुकेशन के पक्ष तो, पर हुण पिछले ਜਿਹੜੇ 5 साल बीते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2000 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਰਨਸ ਇਨਟੂ ਕਰੋੜਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।